एक ही उद्देश्य है कि हम और भी अधिक परमेश्वर के वचनों को जाने और उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Yes, for this morning meditation, let's turn our Bibles to book of Revelation chapter 22 verses 12. इस सुबह के वक्त हमारे ध्यान के लिए प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय का 12वां वचन को हम पढ़ेंगे। This morning time we will meditate some verses connected with the word called the coming of the Lord is very near. इस सुबह के वक्त हम इस वचन कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्द है। Yes, the Lord is not slack concerning his promises, but he is waiting that everyone should repent. वो अपने वायदा के प्रति वो देर नहीं करता, परंतु इस विषय के लिए वो बात होता है कि सभी लोग मन को बनाएं। Praise the Lord. Yes, we can read that verse. Revelation 22 verses 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। Yes. So behold, I come very quickly. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। Yes. So like that we can read 3 times in this one chapter itself. और इसी अध्याय में इस बात को हम 3 बार पढ़ते हैं। Yes, in this book of Revelation chapter 22 we can read this verse about 3 times. और इस प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में हम इस वचन को जो है 3 बार पढ़ते हैं। Yes, even in verses 7 it is mentioned like this. Lord Jesus Christ told, behold, I come quickly. 7वें वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। In verses 12 also it is mentioned, behold, I come quickly. 12वें वचन में भी उसने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। In verses 20 also it is mentioned like this, surely I come quickly. और 20वें वचन में भी ऐसे लिखा गया है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। So in this one chapter itself, Revelation chapter 22, we can read 3 times about the words of Jesus Christ, behold and surely I come quickly. और प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में हम 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ वचन को हम देखते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. Everybody, सब लोग सुन रहे हैं? So today the subject is, yes Lord, you are going to come very soon. आज का विषय यही है कि हाँ प्रभु तू जल्द आने वाला है। Yes, what we should do? हम क्या करना चाहिए? Yes, till the coming of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक। Yes, we all know Lord Jesus Christ is going to come very soon. हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाला है। Yes, there is no doubt in it. उसमें कोई संदेह नहीं है। And every day we are filled with this hope. हर एक दिन हम इस आशा से भर जाते हैं। Even this every worships and services we sing songs in this way that the hope of the coming of the Lord may increase in us. और हर एक आराधना में मीटिंग में हम इस प्रकार से गीत गाते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की आशा हमारे अंदर बढ़ जाए। And every time when we meet each other also people say the Lord is coming, the Lord is going to come soon. और जब हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तब भी हम आपस में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Every time to time we are hearing the word of, we are hearing this word, Lord Jesus Christ coming very soon. और हर बार हम इन बातों को सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। Yes, we all know, not only we ourselves, even all the creations of this world directly and indirectly resembling the coming of Lord Jesus Christ. केवल हम ही नहीं परंतु इस संसार के हर एक सृष्टि भी वो सीधा से या फिर उलट से जो है प्रभु यीशु मसीह के जल्द आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। Yes, I heard that previously in one country one animal started to say, you repent, you get yourself ready for one judgment is going to come into this world. और मैंने कुछ दिनों के पहले इस प्रकार से सुना कि किसी देश में एक पशु ने, एक प्राणी ने इस प्रकार से कहा कि मन फिराओ क्योंकि बहुत ही जल्दी संसार में न्याय होने वाला है। So everywhere we are reading, everywhere we are hearing hearing about the coming of Lord Jesus Christ. इसलिए हर जगह में हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में सुनते हैं। Yes, and even young people also they are hearing it. जवान लोग भी सुनते हैं। But sometimes there is one doubt in us. Till the Lord comes, what we should do?
लेकिन कई बार हमारे अंदर ऐसा एक संदेह उत्पन्न होता है कि प्रभु यीशु मसीह आने तक हम क्या करना चाहिए। Is this morning time, as the grace of God, I will keep before you some 5 points what we should do till the coming of Lord Jesus Christ. इस सुबह के वक्त परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आने तक हमें क्या करना है, उसके लिए मैं 5 बातों को आपके सामने रखता Yes, हूँ। I will share with you 5 points what we should do till the coming of Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमें क्या करना है, उन बातों को मैं आपसे कहता हूँ। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Before that, some verses we can read from the Gospels. उसके पहले हम सुसमाचार से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। Yes, in that verse it is clearly mentioned that day, that hour, no man knoweth. और उसमें इस प्रकार से लिखा गया है कि उस दिन के विषय में, उस समय के विषय में कोई भी नहीं जानता। Yes, Revelation chapter 22, whatever we have read, it is the last prophecy, it is the promise of Lord Jesus Christ. और प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में हमने जो पढ़ा है वो आखिरी वायदा है या फिर भविष्यवाणी होकर दिखाई देता है। We all know that so many prophecies have been fulfilled. हम जानते हैं कि बहुत सारी भविष्यवाणी वो पूरी हो चुकी है And so many promises are fulfilling in this present time. और इस वर्तमान समय में भी बहुत सारे वायदे पूरे हो रहे हैं। And we all know that there are some promises are going to be fulfilled in the coming days. हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ वायदे ऐसे जो पूरा होने वाला है। Yes, and we are testifying it. Yes, Lord, every day, whatever written in the Word of God, the prophecies and the promises are fulfilling. और इस प्रकार से हम भी गवाही देते हैं कि हाँ परमेश्वर आने वाले दिनों में जो वायदा परमेश्वर के वचन में कहा गया है या फिर जो भविष्यवाणी लिखी गई है वो पूरा होने वाला है। Every prophecy mentioned in the Word of God is been fulfilling each and every day. हर एक दिन जो है परमेश्वर के वचन में कहा गया भविष्यवाणी पूरा होता है। And whatever we have read in this morning time, we can say that is the last promise, last prophecy mentioned in the Bible. और इस सुबह के वक्त हमने जिस वचन को पढ़ा हम कह सकते हैं कि ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ आखिरी वायदा या फिर आखिरी भविष्यवाणी है। But one thing is, we do not know when the Lord comes. लेकिन एक बात तो निश्चय है कि हम नहीं जानते कि कब प्रभु आएगा। Yes, when we turn our Bibles to Gospel of St. Matthew chapter 24 and verses 36. मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय का उसका 36वां वचन जब हम पढ़ते हैं। Yes, that or that okay, we can read it. Matthew 24:36. मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय का 36वां वचन। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। But of that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven, but my Father only. Yes, that day, that hour knoweth no man. उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। And also in the same chapter, verses 44 and 42 also, 42 and 44, we can read the same thing. Lord Jesus Christ is going to come very soon. Be ready, because ye know not what an hour the Son of Man cometh. 42 और 44वां वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। All these verses is like a warning to us. ये सारे वचन जो हमारे लिए चेतावनी के रूप में है। Yes, promises are fulfilling, prophecies are fulfilling each and every day. और परमेश्वर का वायदा और भविष्यवाणी जो है हर एक दिन वो पूरा होता है। Yes, and this promise of the Lord coming very soon will be fulfilled in a day which we think not. और ये प्रभु यीशु मसीह जो उसने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूँ, वो जो है हम जिस विषय में, जिस दिन के विषय में हम सोचते भी नहीं, ऐसे समय में वो आ जाएगा। We can read the same thing in the Gospel of St. Mark chapter 13 verses 32. मरकुस का सुसमाचार 13वां अध्याय का 32वां वचन में हम इसी बात को पढ़ते हैं। And we can read the same thing in Gospel of St. Luke chapter 12 verses 40 also. लूका का सुसमाचार 12वां अध्याय का उसका 40वां वचन में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। So like this in the New Testament we can read in so many verses. Yes, we do not know the hour, we do not know the time when the Son of Man cometh. इसीलिए इस प्रकार से हम नए नियम में अनेक जगह में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि हम उस घड़ी के विषय में या फिर उस समय के विषय में हम नहीं जानते जब प्रभु आ जाएगा। Yes, in the New Testament there are 260 chapters are there. नए नियम में 260 अध्याय है। All the Gospels and the epistles, all in the book of including the book of Revelation, we can see some 260 chapters in the New Testament.
पूरे सुसमाचार और जितने भी पत्री लिखी गई है और प्रकाशित वाक्यों को मिलाकर लगभग 260 अध्याय है। Yes, in the 260 chapters, more than 300 times it is mentioned, Lord Jesus Christ is going to come very soon. और 300 बार से भी अधिक इस प्रकार लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। Yes, the time is very near. वो समय बहुत ही निकट है। 1 Peter chapter 4 verse 7. पहला पत्रस 4 अध्याय का 7वां वचन। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए सही में होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। But the end of all things is at hand. Be therefore sober and watch unto prayer. The end of all things is at hand. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। Like that we can see in the word of God, the time is very near, the end is very near, the end is coming. Like that the warning is given to us. इस प्रकार से हम वचन में देखते हैं कि वो समय जो है बहुत ही जल्द अंत होने वाला है, या फिर वो जो अंत का समय है वो बहुत ही निकट है। Like that when we take all these things, we can read more than about 300 times. The time is very near, the coming of the Lord is very near, like that it is mentioned. और इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो 300 बार से भी अधिक इस प्रकार से लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है, वो समय जो है बहुत ही निकट है। Yes, in the book of Revelation chapter 1 verses 3 also we can read like this, the time is very near, the time is at hand. प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 3 वचन में भी हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वो समय बहुत ही निकट है। Yes, so everywhere we can see the end is very near, the time is at hand, the time has come, like that we can see. इसलिए अनेक जगह में हम देखते हैं कि वो अंत आने वाला है या फिर वो अंत का समय बहुत ही निकट है। Yes, when we see the things happening in this world also, जब संसार में होने वाली बातों को हम देखते yes, हैं, we are also aware that something is happening. हम भी जागरूक होते हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। Yes, the time is not like before. पहले के समान समय ही नहीं Yes, रहा। there everywhere we are hearing about wars and battles. हर एक जगह में हम युद्ध के विषय में सुनते हैं। Yes, everywhere we are hearing about new things every day. हर एक दिन जो है हम नई नई बातों को सुनते हैं। Yes, from that we can also understand the time is not like before and the time is no more also. और इन बातों से हम समझ सकते हैं कि समय जो है पहले के समान नहीं है और समय नहीं रहा। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. Yes, all these things are mentioned in the word of God. ये सारी बातें जो है परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। Oh, if the things are like this, यदि ये बातें इस प्रकार से हैं, how much more we should be careful in these days. इन दिनों में हम कितना और अधिक ध्यान पूर्वक होना चाहिए। How much more we should be ready in these days. इन दिनों में हम कितना अधिक अपने आप को तैयार करना चाहिए। How much more we should be vigilant and watchful in these days. इन दिनों में हम कितना चौकस और जागरूक होकर दिखाई देना चाहिए। Yes, so Lord Jesus Christ told you, be watchful, watch and pray, so that you may stand in the day when the Son of Man comes. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो, सदा प्रार्थना करते रहो, ताकि जब प्रभु मनुष्य का पुत्र आएगा तब तुम खड़े हो सको। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Yes, so now we will go to this our subject. इसलिए अभी हम हमारे विषय की ओर जाएंगे। Yes, what we should do till the coming of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमें क्या करना So है। everywhere we are hearing about these things, हर एक जगह में हम इन बातों के विषय में सुनते हैं, but sometimes we are confused till the coming of what I should do. लेकिन कई बार हम गड़बड़ी में दिखाई देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमें क्या करना है। So as I told you, I will share with you some 5 points. इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि मैं आपको 5 विषय बताऊंगा, Yes, so everybody listen very carefully. इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनना। It might be helpful for your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन के लिए ये मददगार हो सकता है। First point, we can turn our Bibles to Epistle of Hebrews chapter 10. सबसे पहले इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय। Yes. Hebrews chapter 10 verses 35 to 37. इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय का उसका 35 से लेकर 37वां वचन तक पढ़ेंगे। इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. For at a little while, and that he shall come, will come, and will not tarry. Yes. So the first thing we can read here is,
Do not lose your confidence. सबसे पहली बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि अपना हियाव ना छोड़ो। Yes, yet a little while, he that comes will come. अब थोड़ा समय रह चुका है, आने वाला आएगा, Yes, he will not tarry. वो देर ना करेगा। Yes, very little time only. बहुत थोड़ा समय रह गया Yes, है। we are also know that very little time is kept before us. हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे सामने थोड़ा समय रखा गया है, Yes, but it is mentioned there, don't lose your confidence. लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि अपने हियाव ना छोड़ना, Yes, don't lose your hope. अपनी आशा को नहीं छोड़ना, Don't lose your encouragement. अपने हियाव को, अपने हिम्मत को नहीं छोड़ना। So we can make it into a point, don't give room for any backsliding also. इसीलिए हम ऐसे कहेंगे कि हम किसी प्रकार के पीछे हटने के अनुभव के लिए जगह न दें। Yes, in the same chapter, verses 38, it is mentioned like this. और इसी अध्याय के 38वें वचन में लिखा गया है, Yes, please we can read it. 38वां वचन, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाएं तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। Yes. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. If anybody draw back, my soul have no pleasure in him. यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। Till the coming of Lord Jesus Christ, we should not give room for any backsliding in us. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम पीछे नहीं हटना चाहिए। Yes, this is the first point. ये पहला विषय है। Yes, you would have heard about the Lord is coming very soon. आपने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है, Yes, there is a reward also coming with him. और उसके साथ प्रतिफल भी आने वाला And we है। do not know that hour, we do not know the time. हम उस घड़ी के विषय में नहीं जानते, हम उस समय के विषय में नहीं जानते, But here it is mentioned, he will come very soon. लेकिन यहाँ पर लिखा गया है वो जल्द आएगा। But don't lose your hope. लेकिन अपने आशा को न छोड़ना, Don't lose your confidence. अपने हियाव को न छोड़ना, Yes, it has a great recompense of reward. और उसके लिए उसका प्रतिफल बड़ा है। But if anybody draw back, यदि कोई मनुष्य पीछे हट जाता है so the Lord will not have pleasure in us. तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। Yes, in these days we can see that everywhere backsliding happening. इन दिनों में हम देखते हैं कि हर एक जगह में लोग पीछे हट जाते Yes, हैं। the devil is working mightily to take away the people of God from the love of God, from the hope of his coming. और शैतान जो हर एक जगह में बड़ी सामर्थ के साथ काम करता है और लोगों को जो है परमेश्वर के प्रेम से और उसके आगमन की आशा से वो दूर ले जाता Yes, है। while we are meditating this word, let us examine our lives in this morning time. जैसे हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करते हैं, सुबह के वक्त अपने जीवन को हम जांच कर Are देखें। we in the same confidence from the day when we are come into this salvation? जिस दिन से हमने उद्धार पाया उस दिन से लेकर आज के दिन तक क्या हम उसी हियाव में दिखाई देते Yes, हैं? from the day the Lord called us till that experience is there in our lives or not? जिस दिन से परमेश्वर ने हमें बुलाया, क्या अब वो अनुभव हमारे जीवन में दिखाई देता है या नहीं? Sometimes we ourselves confess, yes, I am backsliding in my life. कई बार हम इस प्रकार से इकरार करते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में मैं पीछे हट गया हूँ, Yes, I have lost my prayer life. मैंने अपने प्रार्थना जीवन को खो दिया I है। am not meditating the word of God like before. पहले के समान में परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं करता। Yes, sometimes some of us we confess it openly. कई बार हम जो है खुले हम इस बात का इकरार करते हैं, So that is all that some kind of backsliding happening in our lives. और ये सारी बातें जो है हमारे जीवन में पीछे हटने का अनुभव का दिखाई देता है। Yes, dear people of God, while we are hearing this word of God, let us be in prayer, give room, be in the spirit, so that the Lord may encourage us to move forward. इसलिए परमेश्वर के लोगों जैसे ही आप इन वचनों को आप सुनते हो, आप जो है अब प्रार्थना में बने रहिए ताकि जो है परमेश्वर हमें और भी आगे बढ़ा सके। Yes, we should not go backward, but we should move forward. हम पीछे नहीं हटना चाहिए परंतु आगे बढ़ना चाहिए। Yes, when the people of Israel were delivered from the land of Egypt, जब इजरायली लोग मिस्र देश से छुड़ाए गए, oh, they were stagnant in one place. वे एक जगह में खड़े होकर दिखाई दिए। Yes, Lord told to Moses, ask the people to move forward. परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लोगों से कहे कि वे आगे बढ़े। Yes, in this morning time also, let us move forward. इस सुबह के वक्त भी हम आगे बढ़े। Yes, no, don't give room for any backsliding. किसी पीछे हटे हुए अनुभव के लिए हम जगह न दें। The devil will pull you back. शैतान तुम्हें पीछे की ओर खींचेगा, Yes, the world will pull you. संसार तुम्हें पीछे की ओर Yes, खींचेगा। some kind of trouble, some kind of fear may pull us.
कई कुछ व्याकुलताएं और कुछ डर जो है वो हमें पीछे खींच सकता है। But in the word of God it is mentioned the just shall live by faith. लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। Yes, if we are just living by faith, we have to move forward. यदि आप धर्मी हो, आप विश्वास से जीवन बिताते हो तो आपको आगे बढ़ना है। So let us make up our mind in this morning time इसलिए सुबह के वक्त हमारे मनों को हम बनाएं till the coming of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक। Yes, I will not draw back. मैं पीछे नहीं हटूंगा। I will not give room for any backsliding. मैं किसी प्रकार के पीछे हटे हुए अनुभव के लिए जगह नहीं दूंगा। I will not lose my confidence. मैं अपने हियाव को नहीं छोड़ूंगा। It is mentioned here, cast not away your confidence. यहाँ पे लिखा गया है कि अपने हियाव को न छोड़ना। Yes, why the writer wrote like this? क्यों लेखक ने इस प्रकार से लिखा है? Because they are very much dedicated to the work of the Lord when they were enlightened. क्योंकि जब वे प्रकाशित हुए थे तब वे जो परमेश्वर के काम के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित होकर दिखाई दिए। Yes, when we read in Hebrews chapter 10 verses 32 onwards, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय का 32वां वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। But call to remembrance the former day in which after ye were illuminated, ye endured a great fight of affliction. yes, you call to remembrance the former days. इसलिए उन पिछले दिनों को स्मरण करो। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. Yes. सब लोग सुन रहे हैं, एवरीबडी, सब लोग, एवरीबडी हियरिंग। आवाज पहुंच रहे हैं आप लोग के पास। थोड़ा समय के लिए अच्छा से सुन लीजिए, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। So here it is mentioned in the word of God, call to remembrance. यहाँ पे लिखा गया है कि पिछले दिनों को स्मरण करो। Yes, you remember the day which the Lord has brought us in this experience. इसलिए उन दिनों को हम स्मरण करना चाहिए जब परमेश्वर ने हमें इन अनुभव में वो हमें ले आया Yes, है। we are ready to do anything for the Lord. हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। Yes, we are enduring great fight of afflictions. हम जो है बड़े संघर्ष के साथ हम जो है दुखों को उठाते थे। But in these days when we compare our lives, परंतु इन दिनों में जब हम अपने जीवन की तुलना करते we हैं, are not able to endure little things also. हम थोड़े छोटे छोटे बातों को भी हम जो है सहन नहीं कर पाते। Yes, but when the day when we came into the Lord, लेकिन जब हम प्रभु में आए, yes, so we are ready to endure so many things. हम जो है बहुत सारी बातों को सहन करने के लिए तैयार थे। Yes, so but now when we compare our lives now, sometimes we have lost that experience. परंतु जब हम हमारे जीवन को अब देखते हैं तो हमने उन अनुभव को खो दिया है। Yes, we say, Lord, if you do this miracle, I will stay in this faith, otherwise I will leave this faith. हम इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर यदि तू इस अद्भुत काम को करेगा तो मैं इस विश्वास में बने रहूंगा, या फिर नहीं तो मैं पीछे हट If जाऊंगा। you bless my business, I will stay, I will come to the church, otherwise I will not come to the church. यदि तू मेरे व्यापार को आशीष करे तो मैं कलीसिया में आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। If you give me healing, I will continue to go to this church, otherwise I will not go to this church. यदि तू मुझे चंगाई दे तो लगातार मैं इस कलीसिया में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। So sometimes that is our situation in this present time. इसलिए इस वर्तमान समय में हमारा जो अनुभव इस प्रकार से होकर दिखाई देता है। But it is mentioned there, call to remembrance the first experience. लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि पिछले दिनों को स्मरण करो। Yes, you are ready to go through endure some afflictions. आप जो है कुछ दुखों को सहन करने के लिए तैयार थे। Yes, it is true. When we came into the Lord, we were able to do so. We want to suffer for the Lord more. इसलिए ये बात तो सच है कि जब हम प्रभु में आए तब हम परमेश्वर के लिए और भी अधिक दुख उठाने के लिए हम चाहते Yes, थे। we want to do something for the Lord. हम परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए चाहते We थे। want to yield ourselves. We want to suffer for the sake of the Lord, for the name of the Lord. हम जो है परमेश्वर के नाम के प्रति और परमेश्वर के लिए हम जो है दुख उठाने के लिए हम चाहते थे। So today, what is our experience? आज हमारा अनुभव क्या है? Are we in the same experience of enduring things? क्या हम दुख उठाने और सहन करने के अनुभव में हम आज भी दिखाई देते Are we हैं? having the same mind of suffering that the Lord has given us in the beginning? और आरंभ में परमेश्वर ने हमें जो दुख उठाने का मनसा दिया था, क्या वो मनसा अब हमारे अंदर दिखाई देता If है? it is not there, यदि वो नहीं है तो yes, so that we can understand that we are drawing back.
हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम जो है पीछे हट रहे हैं। Yes, but the word of God says, till the coming of the Lord, we should not give room for any backsliding. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम किसी प्रकार के पीछे हटे हुए अनुभव के लिए जगह नहीं देना Yes, but चाहिए, we should endure so many things. परंतु हम जो है बहुत सारी बातों को सहन करना है। Gospel of Saint Matthew, chapter 24, verses 13, it is mentioned like this. मत्ती का सुसमाचार 24वें अध्याय का 13वां वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, Yes, he that endureth unto the end shall be saved. और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Yes, so he that enduring till the end. जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। So till now we would have endured so many things for the Lord and for the sake of the Lord. और अब तक जो हमने बहुत सारी बातों को परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के प्रति हमने सहन किया Very होगा। little time only is left before us. अब हमारे सामने बहुत ही थोड़ा सा समय है, Yes, let us endure more also. हम और भी अधिक दुख उठाएं। Yes, so in this little bit of sufferings, let us not lose our hope. और इस थोड़े से दुख उठाने के कारण हमारे आशा को हम न खोएं। In Romans chapter 8, it is mentioned like this. रोमियों की पत्री 8वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा गया है। Romans chapter 8, verses 18. रोमियों की पत्री 8वें अध्याय का 18वां वचन, Yes, the sufferings of this present world cannot be compared with the glory which is going to be revealed in us. इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। So when we endure some things for the Lord in these days, one glory is waiting for us. इसलिए इन दिनों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जो कुछ भी सहन करते हैं उसकी प्रति एक महिमा हमारे लिए बात होता है। Yes, for all that life of suffering and yielding to the life of suffering, there is one glory waiting for us. इसलिए दुख उठाने के एक जीवन के लिए या फिर हम जो भी परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं उसके प्रति एक महिमा हमारे लिए बात होता है। So we should endure unto the end. इसलिए हम अंत तक दुख उठाना है। Yes, endure in the word of God, in the doctrine, in the truth. परमेश्वर के वचन में, सच्चाई में और उपदेश में हम धीरज धरें। Endure as a good soldier also. और एक अच्छे सिपाही के ना हम उस धीरज को धरें। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Yes, so till the coming of the Lord, we should move forward. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमें आगे बढ़ना है। Yes, in the book of Revelation, chapter 2, verses 4. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 4 वचन में, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Yes, this is the word of Christ to the church of Ephesus. और इफिसियस की कलीसिया के लिए परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का ये वचन Yes, है। you have labored, you have done so much for me. आपने परिश्रम किया है, मेरे लिए बहुत कुछ किया है। Yes, and you have been, for my name's sake, you have not fainted. और मेरे नाम के लिए तुम थके नहीं। But something I have against you. पर मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है। Yes, the Lord is telling against the church. परमेश्वर जो है कलीसिया के विरुद्ध में कहता You है, have lost your first love. तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। So from where you were fallen, from there you repent. इसलिए तू कहाँ से गिरा है वहां से उसके लिए मन फिराना चाहिए। In the 5th verse it is mentioned, from where you are lost, from there you repent and come to the first works. इसलिए 5वें वचन में लिखा गया कि तू कहाँ से गिरा है, मन फिराकर अपने पहले के समान काम कर। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. Yes, this verse for us also. ये वचन जो है हमारे लिए भी है। Yes, from where we have left these things. हमने कहाँ से इन बातों को छोड़ दिया Yes, है। where we have lost our first love. हमारे पहले प्रेम को हमने कहाँ छोड़ Yes, दिया in है। what way we have lost that love of God. और किस प्रकार से उस परमेश्वर के प्रेम को हमने खो दिया है। Yes, what are our first works. हमारे पहले के काम क्या थे। How much we are ready to suffer for the Lord. हम कितना अधिक परमेश्वर के लिए दुख उठाने के But लिए today, तैयार what is थे। our experience? लेकिन आज हमारा अनुभव क्या है। Yes, the Lord has something against us. हाँ, परमेश्वर को हमारे विरुद्ध में कुछ कहना Yes, है। we are drawing back. हम जो है पीछे हटते But the हैं, Lord wants us to move forward. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े। Till the coming of Lord Jesus प्रभु Christ, यीशु मसीह के आगमन तक we should move forward. हम आगे बढ़ना चाहिए। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. Second point. दूसरा विषय, Yes, I told you I will tell you 5 points. मैंने कहा कि मैं 5 विषय बताऊंगा। Second point, we can turn our Bibles to Epistle of James. दूसरा विषय याकूब की पत्री, Yes, chapter 5, verses 7 and 8. उसका 5वां अध्याय का 7 और 8वां वचन।
इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। धीरज रखो, yes. देखो किसान पृथ्वी One की minute. बहुमूल्य ठीक। फसल की One minute. Yes, we can read in English. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Yes. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patient for it, until he receive the early and the latter rain. Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Yes. Sister also read it. हिंदी में भी पढ़ ली। इसीलिए हे भाइयों, प्रभु की आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरी और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। Yes, be also patient. तुम भी धीरज धरो, Yes, coming of the Lord is very near. क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट This है। is the second point. ये अगला दूसरा विषय Is है। what we should do till the coming of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमें क्या करना है? Yes, first point is you don't lose your first works. सबसे पहला विषय ये है कि अपने पहले के कामों को नहीं छोड़ना। Yes, don't lose that first love, don't lose your confidence. अपने पहले प्रेम को और उस हियाव को नहीं छोड़ना, Otherwise, don't give room for any backsliding. या फिर पीछे हटे हुए अनुभव के लिए जगह न दे। Second point we can read from here और दूसरा विषय हम यहाँ पर पढ़ते हैं, is the James the apostle wrote like this. और याकूब प्रेरित ने इस प्रकार से लिखा, Brethren, be patient. भाइयों धीरज धरो। Yes, be patient therefore, brethren, इसलिए हे भाइयों धीरज धरो till the coming of Lord Jesus Christ. प्रभु के आगमन तक। So till the coming of Lord Jesus Christ, what we should do? इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमें क्या करना है? We should be patient in our lives. हमारे जीवन में हमें धीरज धरना है। Yes, we should not lose our patience. हमारे धीरज को हम खोना नहीं चाहिए। Yes, so we should be very much in each and every day in our Christian life, in our spiritual life. We should be be patiently. We should wait for something that till the Lord does. We should be long suffering in our lives. इसलिए हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, हमारे मसीह जीवन में, हम जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम करता है उसके प्रति हम धीरज धरना चाहिए। Yes, everything in a spiritual life, nothing we should expect in a very shift way or hasty way like that. और हमारे इस आत्मिक जीवन में हम किसी भी बात को या फिर किसी भी काम को हम जल्दबाजी में उसकी अपेक्षा नहीं करना Yes, चाहिए। sometimes some people say tomorrow itself we need this like that. कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमें इसकी जरूरत है। Yes, I was in one place, one believer told me, you pray for that next week itself I should get one government job like that. एक जगह में मैं जब सेवा कर रहा था तब एक भाई ने इस प्रकार से कहा कि आप मेरे ब्रदर जी, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, अगले सप्ताह ही मुझे एक सरकारी नौकरी I was मिलना very चाहिए। surprised. मैं बहुत ही अचंभित हुआ, How it is possible? ये कैसे हो सकता है? But he pressurized me in such a way that brother, you have to pray that I have to receive that job like that. लेकिन उसने मुझ पर इतना जोर डाला कि ब्रदर जी आप किसी भी तरह से मेरे लिए प्रार्थना करना ही चाहिए, किसी भी हालात में मुझे वो नौकरी मिलना But चाहिए। the Lord honored his faith. लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास को आदर And किया, the Lord put us not into shame also. और परमेश्वर ने हमें भी लज्जित होने नहीं He had दिया। wrote the exam 3 years back and next week itself he got the job. और 3 साल पहले ही उसने उस नौकरी के लिए एक परीक्षा लिखा था और उसे अगले सप्ताह में ही उसे वो नौकरी मिल गया। Yes, somehow the Lord has been doing great things for every one of us. इसलिए किसी भी प्रकार से परमेश्वर हर एक के लिए बड़े कामों को करता है। But every time we are in a haste for the blessings, for the healing and for the work of the Lord, we have been hastily we are waiting. Lord, you should do it in the next day itself like that. लेकिन हम जो है कई बार जो है हम परमेश्वर के काम के लिए हम जो है बहुत ही जल्दबाजी करते हैं। परमेश्वर तुरंत अगले दिन ही तो उस काम को करना Next day चाहिए, itself my enemy should be departed, enemy should die like that. और अगले दिन ही मेरा शत्रु जो है वो मर जाना चाहिए, Next day I should be delivered from this like that. और अगले दिन ही मैं इन बातों से छुड़ाया जाना If we चाहिए। are having that kind of mind and that kind of shiftness, we in this spiritual life we cannot move forward. यदि हमारे अंदर इस प्रकार से जल्दबाजी का अनुभव है तो हमारे आत्मिक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Yes, the word of God says, till the coming of the Lord, be patient. परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक धीरज धरते रहो। Yes, be patient, brethren. हे भाइयों धीरज धरो। Yes, the Lord will do it for us. हाँ, परमेश्वर हमारे लिए उस काम को करेगा। Yes, the coming of the Lord is very near. हाँ, प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। Yes, till the time we have to wait, we have to be in the church, in the presence
presence of God. इसलिए उस समय तक हमें जो है बाट जोना है, हमें परमेश्वर के हज़ूरी में बने रहना है। Yes, in our patience only we can possess our souls. और धीरज धरने में ही हमारे प्राणों को हम बचा पाएंगे। Gospel of St. Luke chapter 21 verses 19. लूका का सुसमाचार 21वां अध्याय का उसका 19वां वचन। Lord Jesus Christ told, in your patience possess your souls. प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए। Yes, in our day-to-day life, in our Christian life, till the coming of Lord Jesus Christ, we should be patient. हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, हमारे मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमें धीरज धरना है। Especially when we go through some problems, some difficulties, sicknesses, we will wait in the Lord, that in the right time the Lord will do great things for us. इसलिए विशेष खास करके जब हम कई प्रकार के परीक्षाएं या फिर कई प्रकार के कठिन समय में, बीमारी के वक्त में हम दिखाई देते, तब जो हम धीरज धरना चाहिए, प्रभु जरूर हमारे लिए वो काम करेगा। Yes, we will make up our mind till the Lord comes, I will patient in all the things till the Lord does great things for me. इसलिए हमारे मनों को हम बना ले कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक या फिर जब तक परमेश्वर मेरे लिए उस काम को नहीं करता, तब तक मैं जो धीरज धरते हुए दिखाई दूंगा। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. Yes. So you all understanding? Yes. आप सभी लोग समझ रहे Yes. So हो। what is that? What is the word of God we are meditating now? अब हम कौन से परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर रहे So हैं? till the coming of the Lord, what we should do? प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमें क्या करना है? Yes. What we should do? हम क्या करना चाहिए? Yes. We should be patient. हम धीरज धरना चाहिए। Yes. Never we should be, give room for hastiness or anger or irritation or vexation like that. इसलिए हम किसी प्रकार के क्रोध के लिए या फिर जल्दबाजी के लिए या फिर इस प्रकार के अनुभव के लिए हम जगह न दें। Yes, through our patience we should possess our souls. धीरज धरते हुए हमारे प्राणों को हम बचाना In चाहिए। Romans chapter 12 verses 12 it is mentioned like this. रोमियों की पत्री 12वां अध्याय के 12वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, Yes, you be patient in tribulation also. और क्लेश उठाने में धीरज धरो। Yes. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Yes. So you be patient. Romans chapter 12 verses 12. रोमियों की पत्री 12वां अध्याय का 12वां वचन। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। Yes. So, क्लेश में स्थिर रहो. Be patient in tribulations. इसलिए क्लेश में हमें स्थिर रहना है। Yes. So, धीरज. In Hindi Bible it's mentioned, but in English Bible, be patient in tribulation. इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है कि क्लेश के वक्त हमें धीरज धरना है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Tribulations are there. क्लेश हमारे लिए है। Lord Jesus Christ also told, in this world you will have some tribulations. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, Yes, but your sorrow will be turned into joy. लेकिन तुम्हारा जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा। Till that time we should have that patience in us. और उस समय तक हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। So never we give room for any murmuring or going away from the Lord. इसलिए हम जो है परमेश्वर से दूर जाने में या फिर हम किसी प्रकार के बुड़बुड़ाने के अनुभव के लिए हम जगह न Yes, दें। we can read that verse in John the Gospel chapter 16. In this world you will have tribulations. यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय का No, not 16, 14. 33. लास्ट। These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. In this world, हिंदी में भी पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं, परंतु डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Yes, in this world you will have tribulation. इस संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, But I have overcome the world. लेकिन मैंने संसार पर जय पाया है। You also be of good cheer. इसलिए तुम ढाढ़स बांधो। Yes, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Let us not be discouraged in the time when we go through some tribulations. इसलिए जब हम कई प्रकार के क्लेश में जाते हैं तब हम जो है व्याकुल ना हो। Yes, Lord Jesus Christ told, I have overcome this world. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने इस संसार पर जय पाया I है, have overcome these tribulations. मैंने इस क्लेश पर जय पाया है। And the same Lord is giving us needed grace to overcome all the tribulations in our lives और also. वही परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाले हर एक क्लेश पर जय पाने के लिए वो हमें अपना अनुग्रह देता है। Yes, we should be patient in the tribulations. से क्लेश के वक्त हमें धीरज धरना है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। So, till the coming of the Lord, be patient, brethren.
इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हे भाइयों तुम धीरज धरे रहो। Even in Epistle of Hebrews chapter 12 also, run this race with patience. It is इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में भी हम देखते हैं कि इस दौड़ में हम धीरज से दौड़ना चाहिए। yes, this is running only, but we cannot run fast. इस हमें दौड़ना तो है परंतु हम जल्दी में दौड़ना नहीं Yes, चाहिए। this spiritual life is running only. ये आत्मिक जीवन जो है एक दौड़ है। It is so many places is compared with we are running a race like that. और बहुत सारी जगह में इसे एक दौड़ के साथ तुलना की गई है। But here it is mentioned you run this race but with patience also. लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि इस दौड़ में तो दौड़ना है परंतु धीरज के साथ दौड़ना Praise the है। Lord. Hallelujah. हो। So till the coming of the Lord, let us be patient. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम धीरज धरे रहें। Yes, don't lose your patience. अपने धीरज को खोना नहीं Yes, चाहिए। sometimes some people lose the patience and they say we are going away like that. कई बार लोग जो है अपने धीरज को खो देते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार से वे और वे चले जाते हैं। Yes, they will say we are losing, we don't want this faith like that. वे इस प्रकार से कहते हैं कि हमें ये विश्वास जीवन नहीं They lose चाहिए। their patience, they get very angry and they leave the fellowships also. वे बहुत ही जल्द क्रोधित हो जाते हैं और इस संगति को छोड़ देते हैं। Yes, sometimes they lose the patience, the Lord is not answering our prayer, they lose their prayer lives also. और कई बार परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता, इस प्रकार से वे प्रार्थना जीवन को खो देते In हैं। every aspect, everything in our spiritual life, let us hold that patience in our lives. इसलिए हमारे आत्मिक जीवन के हर एक भाग में हम उस धीरज को धरे रहें। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Do not lose your patience. इसलिए अपने धीरज को हम खोना नहीं Yes, the चाहिए। coming of the Lord is very near. हाँ, परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट Yes, है in the time we think not, the Lord comes. और इसलिए हम उस समय के विषय में जब हम सोचते भी नहीं तब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। Yes, then we will be changed, we will be raptured. तब हम जो है बदल जाएंगे, हम रूपांतरित हो That time जाएंगे। we will forget all our tribulation, our sorrows, our difficulties, our sicknesses. उस समय हम जो है हमारे सारे दुखों का, हमारे सारे क्लेशों का, हमारे सारी बीमारियों को हम भूल जाएंगे। Yes, very little time only. वह हमारे लिए बहुत ही थोड़ा सा समय है, Be patient इसलिए धीरज धरे till the रहो Lord comes. प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। One third point, तीसरा विषय 1 Corinthians chapter 1 verse 7. पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 7वां वचन। We will turn our Bibles to 1 Corinthians chapter 1 verse 7. पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 7वां वचन। So that he come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Yes. यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें गति नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते Yes, रहते हो। till the coming of Lord, you wait for the coming of Lord Jesus Christ. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें जो है बाट जोना But है। don't come behind in any gift. इसीलिए तब कि किसी वरदान में तुम्हें घटी ना हो। Yes, so when we read about the gifts in the Bible, इसलिए जब हम पवित्र शास्त्र में वरदान के विषय में पढ़ते हैं yes, it is all through the anointing of the Holy Spirit. और ये सब जो है पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा है। Acts of Apostle 2:38, Peter preached like this, you repent and you receive the remission of sin and receive the water baptism and the gift of the Holy Spirit. प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 32वें वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि संत पौलुस ने कहा तो मन फिराओ और अपने मन फिराकर पश्चाताप करते हुए पानी का बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करो। Yes, till the coming of the Lord, we should not come behind in any gift. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम किसी भी वरदान में पीछे हटे हुए को दिखाई नहीं देना Yes, चाहिए। this morning time also, let us examine our lives, whether the gift of the Holy Spirit is working in us in our day-to-day life. इस सुबह के वक्त भी हमारे जीवन को हम जांच कर देखें कि दिन प्रतिदिन क्या पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो हमारे जीवन में काम करता है या नहीं। Yes, gifts means it is freely given and it is also gift means the talents also the Lord has given to us. और दान कहने से वो हमें मुफ्त में दिया गया है और दूसरा वो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ वरदान भी है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Till the coming of the Lord, we should not come behind in any gift. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम किसी भी वरदान में जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। Yes, the word of the Lord say in the Bible we can read about some spiritual gifts. इसलिए पवित्र शास्त्र में हम कुछ आत्मिक वरदान के विषय में पढ़ते हैं। 1 Corinthians chapter 12 it is mentioned, brethren, you should not be ignorant about the spiritual gifts. पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा गया है कि किसी भी आत्मिक वरदान के विषय में तुम निश्चिंत ना हो। 1 Corinthians chapter 12 verses 1. पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय का पहला वचन। Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Yes.
हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. Yes, till the coming of Lord Jesus Christ. तब यीशु मसीह के आगमन तक। Yes, this is the third point. ये तीसरा विषय है। First point, what is the first point? पहला विषय क्या था? First point, no. या बांधना. Yes, we should not give room for any backsliding. First इसलिए point. पहला विषय ये है कि हम पीछे नहीं हटना चाहिए। Second point is we should be patient. दूसरा हमें धीरज धरना है। Third point is the gift should work. तीसरा विषय ये है कि वरदान काम करना Yes, the चाहिए। gift of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का वरदान, The spiritual gifts. आत्मिक वरदान। So till the coming of the Lord, we should be filled with that gifts. प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम उस वरदान से भरपूर होकर Yes. दिखाई देना है। Nobody should say, I have no gift in my life. कोई भी इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए कि मेरे जीवन में कोई वरदान नहीं Yes, some है। people, some of us, we are very much careless in our Christian life. और कुछ लोग जो है अपने आत्मिक जीवन के विषय में बहुत ही So- निश्चिंत होकर दिखाई देते हैं। See, only St. Paul wrote here, brethren, I would not have you ignorant about the spiritual gifts. इसलिए संत पौलुस यहाँ पे कहता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। Yes, we should know the spiritual gifts. हम जो है आत्मिक वरदान को जानना What चाहिए। all the spiritual gifts the Lord has given to us. परमेश्वर ने हमें दिए हुए आत्मिक वरदान कौन से हैं? Yes, it is not depend upon our education, our own gifts and talents. या ये हमारे पढ़ाई के ऊपर या फिर हमारे ही वरदान के ऊपर ये निर्भरित नहीं It है। is not concerned with the wisdom of this world also. इस संसार के ज्ञान के साथ उसकी तुलना नहीं की The गई gifts है। itself is mentioned as spiritual gifts. और वो वरदान जो है आत्मिक वरदान होकर कहा गया है। Everyone, every spirit baptized child of God should possess at least one gift in your lives. इसलिए हर एक पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए परमेश्वर के एक व्यक्ति जो है वो कम से कम एक वरदान को प्राप्त करना चाहिए। No, nobody should say I am ignorant. कोई भी मैं इस बात से अनजान हूँ And ऐसा नहीं nobody कहना should say चाहिए। I have no gift. कोई भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरे अंदर कोई वरदान नहीं है। Nobody should say I have not known about it and I am a newcomer. और कोई भी इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए कि मैं इसके विषय में नहीं जानता, मैं नए से यहाँ Yes, पर आता some हूँ। people will say I am a newcomer. Like, कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक नई आत्मा yes, हूँ। don't worry. When we come new into the Lord also, the Lord gives us gifts and talents. कोई बात नहीं, यदि आप नए से इधर आते हो फिर भी परमेश्वर जो है आपको कुछ ना कुछ वरदान In और या Romans दान it is देता है। mentioned gifts and the calling of God or without repentance. रोमियों की पत्री में इस प्रकार से लिखा गया है कि परमेश्वर के वरदान और जो बुलाहट है Yes. उसके लिए वो मन नहीं So फिराता। each and every day we should be aware and we should know till the coming of Lord Jesus Christ, the gift of the Holy Spirit should work in our lives. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक वो पवित्र आत्मा का जो काम है, पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो हमारे जीवन में काम करना Yes, चाहिए। how many of you have received the anointing of the Holy Spirit? कितने लोगों ने पवित्र आत्मा के उस काम को, उस वरदान को प्राप्त किया है? Yes, please lift up your hand. How many of you can say, yes, I have received the anointing of the Holy Spirit by इसलिए- speaking in unknown tongues. कितने लोग इस प्रकार से कहते हैं कि अन्य भाषा के चिन्ह के साथ मैंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया है। Praise the Lord. Hallelujah. Yes, then till the coming of the Lord, the gift should work in your life. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन तक ये वरदान आपके जीवन में काम करना Yes, चाहिए। be desires, zealous of spiritual gifts. इसलिए आत्मिक वरदानों के विषय में आप एक धुन रखिए। Yes, in 1 Corinthians chapter 14 verses 12, be desirous of spiritual gift. पहला कुरिन्ती 14 अध्याय के 12वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। Yes, it may edify the church. वो कलीसिया को बढ़ा सकता The है, church will grow. कलीसिया बढ़ती जाएगी। Yes, so through these gifts only we should not come back in any gift. इसीलिए हम इन वरदानों के द्वारा ये हो सकता है, इसलिए किसी भी आत्मिक वरदान में हम पीछे नहीं हटना चाहिए। 14:12. 14वां अध्याय का 12वां वचन। Even so, ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church. Yes, yes. इसीलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Be zealous for the spiritual gifts. इसलिए आत्मिक वरदानों की धुन में लगे Yes, रहो, you may edify ourselves, we may edify the church. ताकि हम अपने आप में उन्नति करें और कलीसिया को भी Yes, उन्नति till the दें। coming of the Lord we should be edified. तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमारा उन्नति होना चाहिए। Yes, praise the Lord. Hallelujah. चौथा
Yes, through the spiritual gifts only we can be edified. इसलिए इन आत्मिक वरदानों के द्वारा ही हम उन्नति पा सकते हैं। Yes, 2 Timothy 1:6, St. Paul wrote to Timothy like this. दूसरा तिमोथी पहला अध्याय के 6वें वचन में संत पौलुस ने तिमोथी Stir से up the कहा, gift which is in you. और तुम्हारे अंदर जो वरदान है, Yes, the Lord has given us so many gifts in our lives. परमेश्वर ने Through हमारे the जीवन anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा बहुत सारे वरदान दिए हैं। Yes, some of us we have the gift of prophecy. हम में से कुछ लोगों को भविष्यवाणी का वरदान Yes, है, some of us we have the gift of seeing visions. कुछ लोगों को दर्शन देखने का वरदान है, Yes, some of us we have the gift of translation of unknown tongues. और अन्य भाषा का भाषांतर करने का वरदान है, Some of us we have the gift of evangelism, preaching the word of God. और परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का एक वरदान कुछ लोगों को Yes, होता है। so many 9 gifts that is mentioned in this 1 Corinthians 12. So many gifts the Lord has filled in our lives. पहला कुरिन्थी 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि बहुत सारे आत्मिक वरदान के विषय में लिखा गया है, परमेश्वर ने अपने हमारे जीवन में Yes, देता है। where all the gift in the today in our lives. आज के दिन में वो वरदान कहाँ है? Let us examine our lives whether the gifts are working in our lives. अपने जीवन को हम जांच कर देखें कि वो वरदान हमारे जीवन में काम करता है या Be नहीं। zealous for spiritual gifts. इसलिए आत्मिक वरदानों के प्रति आप धुन में रहिए। Till the coming of Lord Jesus Christ, we should not lag behind in any gift. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन तक हम किसी भी वरदान में हम पीछे हटना नहीं Spiritual चाहिए। gifts should work in each and every one of us. आत्मिक वरदान जो है हर एक के जीवन में काम करना If चाहिए। you have the gift of prophecy, every meetings, every worships, we should prophesy. We should stir up the gift which is in us. इसलिए यदि हमारे अंदर भविष्यवाणी का वरदान है तो हर एक मीटिंग में आकर हम जो भविष्यवाणी करना चाहिए, हमारे अंदर जो वरदान है उसे हम उभारना Yes, चाहिए, it will help us for our edification. और हमारे उन्नति के लिए वो मददगार होगा। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. Yes, this is the third point. अब हम तीसरा विषय देखेंगे। Fourth point. चौथा विषय, Yes, 1 Thessalonians chapter 5 verses 23. पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय का 22वां वचन। And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Yes. 1 Thessalonians 5:23. पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय का 23वां वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Yes, till the coming of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन तक Our body, our spirit, soul and body be preserved blameless. हमारी जो आत्मा प्राण और शरीर है वो जो है निर्दोष होकर दिखाई दे। Now, this is the fourth point. ये चौथा विषय है। Yes, we are been thinking what we should do till the coming of Lord Jesus Christ. हम इस प्रकार से सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन आने के दिन तक हमें क्या करना होगा। Yes, your spirit, soul and body be preserved blameless. इसलिए तुम्हारा जो आत्मा प्राण और देह है वो निर्दोष होकर दिखाई दे। Yes, nobody should blame us in anything. किसी भी बात में कोई हम पर दोष नहीं लगाना चाहिए। Yes, no blame in our spiritual lives. हमारे आत्मिक जीवन में कोई दोष नहीं लगाना Our चाहिए। spirit, soul and body be preserved. हमारी जो आत्मा प्राण और देह है वो सुरक्षित रहना चाहिए। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। In 1 Corinthians it is mentioned we are the temple of living God. पहले कुरिन्थी में लिखा गया है कि हम जो है परमेश्वर के मंदिर हैं। Yes, this body should not be blamed, it should not be defiled. ये जो शरीर है वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए। Yes, we are the temple of the living God. हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। We are the temple of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। We should preserve this blameless. इसलिए इस निर्दोष के अनुभव को हम संभालना चाहिए। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Till the coming of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन तक Yes, live a blameless life. इसलिए हम एक निर्दोष जीवन बिताएं। Yes, sometimes some things comes in our lives. कई बार हमारे जीवन में कुछ बातें होती हैं, Give room for sanctification. लेकिन जो हम जो है शुद्धिकरण के लिए जगह देना चाहिए, Yes, Lord may cleanse us, sanctify us. ताकि परमेश्वर हमें धोकर हमें शुद्ध कर Lord may सके। clean us from all uncleanliness. परमेश्वर हमें हमारी सारी अशुद्धता से हमें शुद्ध So कर that we सके। may free from all that blame, इसलिए उन सारे दोष, blemishness. सारे उस दोष और दाग से जो है हम छुड़ाए जाएं। We should preserve ourselves. अब अपने आप को संभालना चाहिए, Yes, this should happen only with ourselves only. और ये जो बातें केवल हमारे अंदर होना चाहिए। Yes, this is the fourth point. ये चौथा विषय है। Yes, 1 John chapter 2 verses 28. पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 28वां वचन। Yes, so 5 minutes I will finish my word. 5 मिनट में मैं अपने वचनों को खत्म करूंगा। Yes, 1 John chapter 2 verses 28. पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 28वां वचन। And now, little children, abide in him,
that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. अतः हे बालको, उसमें बने रहो कि जब वे प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने तक उसके सामने लज्जित न हो। Yes, abide in him. इसलिए हम उसमें बने रहना Yes, चाहिए। when he shall appear, जब वो प्रकट होगा yes, we will not be ashamed before him. तब हम उसके सामने लज्जित नहीं होंगे। Till the coming of Lord Jesus Christ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन तक abide in him. हम उसमें बने रहना Then चाहिए। fifth point. ये 5वां विषय है। Yes, so don't go here and there. इसलिए इधर उधर नहीं जाना Yes, चाहिए। abiding means staying in the place where the Lord has kept us. और बने रहना इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने हमें जिस स्थान में रखा है उस जगह में ही हम बने रहना है। Yes, abiding in the Lord, abiding in the word of the Lord. प्रभु में बने रहना और उसके वचनों में बने रहना। Yes, abiding in our calling. हमारे बुलाहट में हमें बने रहना In है। 1 Corinthians chapter 7 it is mentioned, abide in the same calling where the Lord has called you. पहला कुरिन्थी 7वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा गया है कि जिस बुलाहट में आप बुलाए गए हो उसमें आप स्थिर रहो। So till the coming of Lord Jesus Christ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय तक let us abide there where the Lord has kept us. इसलिए परमेश्वर ने हमें जहाँ रखा है वहाँ हम बने रहें। Yes, abide in our calling. हमारे बुलाहट में हम बने रहें। 1 Corinthians 7:20, let every man abide in the same calling wherein he was called. और पहला कुरिन्थी 7वें अध्याय का 20वां वचन में हम देखते हैं कि हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। Yes, in 24, brethren, let wherever he is called, there abide with God. इसलिए 24वां वचन में हम देखते हैं कि तुम जिस Brethren, दशा में तुम बुलाए गए हो उसी जगह में उसी दशा में दिखाई देना। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Yes, where you are called, you abide there itself. इसलिए जहाँ तुम बुलाए गए उसी दशा में बने रहो। Yes, we should not lose our place. हमारी जगह को हमारी दशा को में खोना नहीं चाहिए। Yes, some of us, we are called to be doing some Sunday school ministry. कुछ लोग जो है कुछ संडे स्कूल की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। Sometime the Lord has called you, you do this work in the house of the Lord. कुछ लोगों को परमेश्वर के घर में इस काम को करने के लिए वे बुलाए गए Yes, हैं where the Lord called us, you abide in the same calling. और इसलिए उसी बुलाहट में जो है हमें बने रहना चाहिए। Yes, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Till the coming of Lord Jesus Christ, abide there itself. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमें बने रहना Yes, है। sometimes some kind of wind and waves will come. इसलिए कई बार कई प्रकार के आंधी और तूफान लहरें Yes, आएंगी। some trials and temptations will come. कई प्रकार के परीक्षाएं और आजमाइश आएगी। But word of God says, abide in the Lord, abide in Him, where you are called, there you abide with God. इसलिए परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें बने रहो और जिस दिशा में तुम बुलाए गए हो उसमें बने रहो। Yes, you are called to do this work, you stay there itself. इसलिए इस काम को करने के लिए बुलाए गए, इसलिए उसी जगह में रहना। So when He comes, we will not be ashamed. इसलिए जब वो आएगा तब हम लज्जित नहीं होंगे। This you put it in our mind. In anything happens, let us abide in our same place. इसलिए इन बातों को हम स्मरण में रखें कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम जो है हमारी बुलाहट में बने रहना Yes, चाहिए। abide in the same calling. उसी बुलाहट में बने रहना Yes, चाहिए। let us not lose our calling. इसलिए हमारे बुलाहट को हम खो न दें। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। One more point we'll see, we will finish it. एक और विषय देखकर हम समाप्त करेंगे। Epistle of Jude, chapter 1, verses 21. यहूदा की पत्री उसका 21वां वचन, 20 and 21. 20 और 21वां वचन। But ye beloved, building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते रहोए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति Till हो। the coming of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के Yes, दिन build तक up yourself in the most holy faith. अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते And रहो be praying in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते Yes, रहो। let us do all these things in our lives. इसलिए हम भी हमारे जीवन में इन सारी बातों को करें। Shall we close our eyes for some time? आइए हमारी आंखों को हम थोड़े समय के लिए बंद करें। Yes, few verses we heard from the word of God. परमेश्वर के वचन से हमने कुछ वचनों को सुना। Yes, as we see all the things happening around us, the coming of the Lord is very near. जिस प्रकार से हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट Yes, है। till the coming of the Lord, we should do these things. प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमें इन बातों को करना है। Yes, we should not lose our confidence. हमारे हियाव को हमें नहीं छोड़ना We है। should not draw back.
हम पीछे नहीं हटना Yes, we चाहिए, should be patient. हमें धीरज धरना है। Praise the Lord. We should not lag behind in any gifts. हम जो है किसी भी वरदान में हम पीछे नहीं हटना Our चाहिए। body, soul and spirit, our spirit, soul and body we preserve till the coming of Lord Jesus Christ. हमारी आत्मा, प्राण और शरीर जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरे निर्दोष होकर सुरक्षित रहे। We should abide in Him. हम उसमें बने रहना Yes, चाहिए and we should be building up ourselves in the most holy faith and praying in the Holy Spirit. और अति पवित्र विश्वास में बने रहते हुए हम जो है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना So चाहिए, that when He comes in His glory, we will not be ashamed. ताकि जब वो अपने महिमा में प्रकट होगा तब हम लज्जित न हो। Lord may help us to do all these things in these days. इन दिनों में परमेश्वर हमें सब करने के लिए हमारी सहायता करेगा। May the Lord help us, prepare us for His soon return. परमेश्वर हमारी मदद करने दो और अपने जल्द आगमन के लिए हमें तैयार करने दो। Praise. परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़े दिन दादी जदाई काकली थोड़ी दिन तेरी तेज आएगा कली, वफादार रही तो इनका ना करी, बस सुनो में वफादार रही तो इनका ना करी, बस सुनो में निचा दी तुदा सब नर्मुका, निचा दी तुदा सब नर्मुका, प्यारा यीशु से संतान नाले जावेगा, प्यारा यीशु से संतान नाले जावेगा, ओ दिन ये दो आएगा जरूर, जल्दी आएगा, ओ दिन ये दो आएगा जरूर, जल्दी आएगा, तरमीने चाहतो फिर जिंदा रहेगा, तरमीने चाहतो फिर जिंदा रहेगा, नीचा जो करी दोस्तों प्रभु यीशु प्रसन्न रहेगा, पीछे जो हटी उससे प्रभु यीशु प्रसन्न होगा, नीचा जो करे ओ जिंदा रहेगा, नीचा जो करे ओ जिंदा रहेगा, पीछे जो हटी उससे प्रभु यीशु प्रसन्न होगा, पीछे जो हटी उससे प्रभु यीशु प्रसन्न होगा, नीचा जो करे ओ जिंदा रहेगा, नीचा जो करे ओ जिंदा रहेगा, पीछे जो हटे उसको प्रभु यीशु प्रसन्न होगा, 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 पीछे जो हटे उसको प्रभु यीशु प्रसन्न होगा। Jesus. Shidabila balakada tida ida balam tila rebi kada balam tida manan shida balam tida rebi kada tila. Hallelujah, 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 hallelujah. Savior Lord Jesus, bida manan kada tila ida balakada tida ida balakada tida. Shidabila manan kada tila ida bakada tila ida balam tida rebi kada shida rebi da manan tila. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, vida mana khada tuda divishde. Hallelujah, Father Lord, gracious Lord, we pray the Lord. Vida mana khada tuda shde, bala bala khada tuda.
Hallelujah, 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 hallelujah. Gracious Lord, we pray thee, Lord, we pray thee, Lord, we pray thee, Lord. Help us, O Lord, till thy coming, O Lord. We do all these things in our lives, O God. Help us to abide in thee, Lord, abide in the calling, O Savior, Lord. Help us to be zealous for the spiritual gifts, O God. Hallelujah, Jesus. Shri Vida Manankada Tuda Ribi Shadan Tide Ribi Kalandala Ilakada Balandade. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Jesus. अपने वरदाना चमका की हंसी रखी, अपने वरदाना चमका की हंसी रखी, सिरानो उठा के उस तेरा खानो भी तकिए, सिरानो उठा के उस तेरा खानो भी तकिए, लाड़े रे मिलन नो तैयार रहिए, आत्मा दी चलाई चलती रहिए, लाड़े मिलन ले तैयार रहिए, आत्मा दी चलाई चलती रहिए, अपने वरदाना नो चमका की हंसी रखी, अपने वरदाना नो चमका की हंसी रखी, सिरा नो उठा के उसे राखानो भी तकिए, सिरा नो उठा के उसे राखानो भी तकिए, लाड़े रू मिलन लेके आ रहिए, आत्मा दे चलाई चलती रहिए, लाड़े रू मिलन लेके आ रहिए, आत्मा दे चलाई चलती रहिए, लाड़े रू मिलन लेके आ रहिए, आत्मा दे चलाई चलती रहिए, लाड़े रू मिलन लेके आ रहिए, आत्मा दे चलाई चलती रहिए, लाड़े रू मिलन लेके आ रहिए, आत्मा दे चलाई चलती रहिए, लाड़े रू मिलन लेके आ रहिए, आत्मा दे चलाई चलती रहिए, लाड़े रू मिलन लेके आ रहिए, आत्मा दे चलाई चलती रहिए, लाड़े रू मिलन लेके आ रहिए, आत्मा दे चलाई चलती रहिए, लाड़े रू मिलन लेके आ रहिए, आत्मा दे चलाई चलती रहिए, लाड़े रू मिलन लेके आ रहिए, आत्मा दे चलाई चलती रहिए। Hallelujah, Jesus. Vida Mankada Bada Diloi da Balam Shide. Divila Balakada Diloi da Bakada Batida Bashida Batida Bashida Bata. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Every one of us, O Lord. You come, Lord, to see thee when you comes in thy glory, Lord. Amen, amen, amen. Oh, Rabalam today, she be cut of the light, Rabalam Shadai, Rabilaman of the light. Hallelujah, 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 hallelujah. Father Lord Jesus, she cut of Balam, Tilaman, Tilabala, Tilabala, Kalabala, Tida, Ribilaman and Kadatula, Rabalam, Shade, Ribi Kalam the light, Rabalam the light. Hallelujah, 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 hallelujah. Father Lord, praise you Lord, praise you Lord, praise the Lord, praise the Lord. तारीफ करेंगे, praise the Lord, 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 praise the Lord. सुबह इधर में आराधना होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इस आराधना के लिए हम लोग को भी लेकर आया। थोड़ा समय परमेश्वर का हजूरी में बैठकर गीत गाने के लिए, आत्मा में भरने के लिए, वचन को ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने दिया ये सुंदर समय के लिए तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। जो आशीष हमको मिला है यीशु मसीह का आगमन तक, उसको हम सुरक्षित संभाल कर रखने के लिए परमेश्वर हमको क्या उद्देश्य के साथ बुलाया, उसको पूरा कर कर उसका आगमन के लिए इंतजार करने के लिए परमेश्वर हम सब लोग को मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। संडे तक इधर होने वाला हर एक मीटिंग्स को भी बाइबल स्टडी, स्टेयरिंग मीटिंग, इंतजार सभा,
सब परमेश्वर आशीष कर कर देने के लिए आज होने वाला टेयरिंग मीटिंग इंतजार सभा को भी, शाम को होने वाला बाइबल स्टडी को भी परमेश्वर आशीष कर कर देने के लिए तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। इस इन दिनों में इस बाइबल स्टडियों के द्वारा, इस मीटिंग्स के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में भी आश्चर्य काम, अद्भुत काम करने के लिए, एक भेदार भेजने के लिए, यीशु मसीह के आगमन के लिए हम सबको तैयार करने के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए सबको तैयार करने के लिए तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। सारे आदर महिमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देते हुए तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे प्रभु तेरी तारीफ करने राजा, गुजरे दिना तेरी जुड़ी साथ रही तो समाला साली परमेश्वर हमको चंदा दिन दिया राजा, तेरी तारीफ करने राजा तो अच्छा मौसम दिया, रुकावट तो ना प्रभु तेरी तारीफ करने गीता ने बहुत आया, खास करके गवाही खड़ा किया राजा, तेरी तारीफ करना, तेरी जुड़ी हमारे साथ रहे, अपने बच्चों गल बात किया राजा, तेरी तारीफ करना राजा, धर्मी बंद विश्वास ना जिंदा ना जा, तेरे उत्ते विश्वास करते भरोसा करते राजा, तेरी तारीफ करने राजा, खास काका हाँ विश्वास तो डावाडोल हो जाता, फिर भी विश्वास बने रहने के लिए परमेश्वर हमको तो मैतिया का संभाला, तेरे वचन हमको जयवंत बना, तेरे वचन पे भरोसा करने के चलने के लिए अभी तक मैत क्या संभाला प्रभु, तेरी तारीफ। धर्मी बंदा विश्वास से गिर जाता, फिर तू उठाता प्रभु, तो अनुग्रह देता राजा, तेरी तारीफ बना, तेरे वचन है परमेश्वर विश्वास को बढ़ाता, तेरा वचन हमारे लिए जयवंत बनाता राजा, तेरे वचन हमको पवित्र करता, तेरा वचन जयवंत प्रभु, तेरी लकार है प्रभु, तेरी तारीफ करना राजा, विश्वास की अखा ना देख दे प्रभु, तेरा अनुग्रह दे नाल प्रभु, तेरी तारीफ करना, धर्मी तेरे ललकार दी आवाज आ, धर्मी बंद विश्वास ना जिंदा रहता, तेरी तारीफ करना, तेरे वचन सुनना जयवंत बनाता, तेरा वचन पवित्र राजा, तेरी तारीफ करना राजा, खास करके परमेश्वर होर भी तेरे आमद नेरे है प्रभु, तेरी तारीफ करने राजा, खास करके राजा और भी तेरे विच बने रहने के लिए आखिर तक तो माइत के संभाला प्रभु, तेरी तारीफ करना रा, आखिरी दिन तेन हमारे विश्वास के हमारे लोगों के विश्वास को बने रहने के लिए माइत करना, शैतान दी शक्ति को तो नाश करना, युक्ता तो नाश करना प्रभु, तेरी तारीफ करना, तेरे बच्चे ने उत्ते विश्वास करने रे राजा, अपना अनुग्रह दे के चलाने वाला प्रभु, धर्मी पिता प्रभु, विश्वास बने रहने के लिए आखिर तक माइत करना, सच्चाई को जाना, सच्चाई विच बने के लिए राज माइत करना, तेरी तारीफ, तेरे निशाने उत्ते चलने के प्रभु तो अपनी माइत करना, विश्वास को बढ़ा के आगे बढ़ माइत करना राजा, जिन्हें लोग को आए परमेश्वर तू चंगा करना, हिम्मत ताकत देना प्रभु, तेरी तारीफ करने राजा, तेरी अखा देना, धर्मी बन विश्वास नाल परमेश्वर आपको कर सकता, तेरी तारीफ करना राजा, और भी तेरी जुड़ी साथ होकर तू चलाने वाला प्रभु राजा, शाम दी तो मीटिंग का बोझ उठा के तो अपना अनुग्रह दे के चलाना, अपने लोगों का तो संभालना, आशीष देना, तेरी तारीफ करने राजा, खासकर जिसलिए बुलाया आखिर तक हमारे जीवन में पूरा करके चलाना प्रभु, तेरी तारीफ करने राजा, तेरे प्रेम में बने रहने के लिए आखिर तक तो माइत करना संभालना, तेरी तारीफ करना, तेरा चेहरा देखना ढूंढने के लिए आखिर तक तो माइत करना, तेरी तारीफ करना राजा, हमारी सेवा का तो उन्हें आशीष बरकत देना, तेरी तारीफ करना, अपने तो लोगों को लेके आना प्रभु, तेरी तारीफ करने राजा, हमारे लोगों का विश्वास को आगे बढ़ने माइत करना, तेरी तारीफ करने राजा, तेरी जुड़ी साथ होकर तू चलाना, शाम दी मीटिंग का बोझ उठा के चलाना, तू आशीष देना, अपने लोगों को इकट्ठा करना, तेरी तारीफ करने राजा, दर्शमता गल बात कर राजा, तेरी तारीफ करना, जिन्हें विश्वास ना है तो विश्वास का तू आदर करता प्रभु, तेरी तारीफ करने राजा, तू संभालने वाला प्रभु, तेरी तारीफ करने राजा, हमारे सेवादारों को संभालने वाला प्रभु, तेरी तारीफ करना, सेवा तेरी, हम तेरे बुलाया वफादार प्रभु, तेरी तारीफ करना, तेरे विश्वास के नाल हम सब कुछ करते राजा, तेरी तारीफ करना, जिन्हें लोग आया विश्वास को बढ़ाना, आशीष देना प्रभु, जिन्हें लोग बीमार चंगा करना, हिम्मत ताकत देना, रोटी पानी तो बरकत देगा, बीमारी को दूर करेगा, तेरा वादा परमेश्वर प्रभु लोगों को हिम्मत ताकत देता, हर बीमारी को जयवंत बनाता, हर कावटा को तोड़ता, शांति सली देता, तेरी तारीफ करने राजा, तेरी जुड़ी साथ होकर चलाना, तो आशीष देना प्रभु, तेरी तारीफ करना राजा, तेरे प्रेम में अपने लोगों को बनने के लिए राह माइत करना, तेरी तारीफ करना, डावाडोल जेरे लोग कराना, उन्हें भी जीवन में बरवाना प्रभु, अपने खून के नीचे छिपाना प्रभु, तेरा खून मान, तेरा खून पवित्र राजा, जयवंत प्रभु तू है प्रभु, तू निराकार दी दूत के नाल लेके जाएगा, तेरी तारीफ करना, धर्मी बंद विश्वास देना, सब कुछ कर सकते राजा, तेरी तारीफ करना, तेरे प्रेम में बने रहने के लिए माइत करना, खासकर शाम दी मीटिंग का बोझ उठाना, अपने लोगों
को लेकर सारी लोगों की लापरवाही सुस्ती को दूर करना, तेरा कर प्रार्थना न बनने का तू लोगों को लेके आ जा, आशीष देना प्रभु, अपने राज लिए तैयार करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति हमारे के साथ यीशु मसीह के आगमन तक बने रहेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।